Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Naman Sharma, currently pursuing BCA FIPSEM from IIPS. We are making a video of internal to solution of data science. First question, applying KDD step to identify relevant IPC and BNS section. Introduction to KDD process. First, data collection. Second, data processing. Third, data mining. Fourth, knowledge evaluation. First, data collection. Gathering relevant legal data from various sources. डाटा को कलेक्ट करते अपन अलग अलग सोर्सेज से लाइक गूगल, Amazon and so on. Industry cases file, status and legal databases. डाटा प्री प्रोसेसिंग. फिर अपन डाटा को क्लीन करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू द यूजेबल फॉर्मेट. उसको यूजेबल फॉर्मेट में लाते हैं इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, जिससे वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है. डाटा माइनिंग, applying algorithm and technique to discover patterns and insight from the processed data. Knowledge evaluation, interpreting and validating the finding, ensuring their relevance and applicable in a legal constraint. Step 1. Understanding the problem domain. First, define the objective. Clearly defining the goal of analysis. In this case, identifying relevant IPC and BNS. क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है गोल्स को, आइडेंटिफाई कर पाए अपन कि कौन सी उसको सेक्शन लगाना है, आईपीसी सेक्शन और बीएनएस सेक्शन में. सेकंड, एनालाइज द कंप्लेंट. फिर एनालाइज करना पड़ता है कंप्लेंट को, केयरफुली अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द कंप्लेंट एंड द स्पेसिफिक डिटेल प्रोवाइडेड बाय द कंप्लेंट. मतलब जो विटनेस बोल रहा है कंप्लेंट, उसको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है एंड समझना पड़ता है. थर्ड, आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट. Extracting key element from the complaint such as alleged offense and the location and the date of incident. और ये सब कंप्लेंट में से अपने को ये सब एलिमेंट निकालने पड़ते हैं कि alleged offense था, लोकेशन कौन सी थी, डेट क्या था उसका एंड सो ऑन. फोर्थ, एक्सप्लोर लीगल फ्रेमवर्क, reviewing relevant section related offense and the complaint. Step 2. Data pre-processing and data cleaning. Data cleaning. Text handling missing values, removing duplicate and correcting inconsistent in the data. हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यू को, डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं एंड करेक्ट करते हैं इनकंसिस्टेंट को, करेक्ट करते हैं डाटा को. टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट. टेक्स्ट जो रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं अपन कंसिस्टेंट फॉर्मेट, मतलब सिंगल सिंगल केस वर्ड को अपन एक एक सिंगल कोटास में लिखते जाते हैं, सच एज लोअर केसिंग, रिमूविंग पंक्चुएशन एंड स्टेमिंग वर्ड्स. फीचर एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट फीचर फ्रॉम द टेक्स्ट सच एज कीवर्ड फ्रेजेस एंड आइडेंटिटीज. डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, transforming the data into a format suitable for analysis such as converting categorical variable into a numerical ones. Step 3. Identifying relevant IPC section. Keyword matching. Matching keyword from the complaint with the relevant section in the IPC. IPC में जो कीवर्ड होते हैं उनमें से अपन देखते हैं कि IPC सेक्शन लगेगा या तो BNS सेक्शन लगेगा. Text similarity analysis, using algorithm like concise similarity to identify section with similar text to the complaint. Legal expert system, developing a knowledge-based system to automatically identify relevant IPC section. Machine learning models, training machine learning model on a data set of IPC section and complaint to predict relevant section. Step 4. Mapping IPC section to applicable BNS section. IPC BNS mapping table. Creating comprehensive table that map IPC section to their equivalent section in the BNS. Second, textual analysis of section. Comparing the content and wording of IPC and BNS section to identifying relevant mapping. Legal expert inputs. Seeking advice from legal expert to ensure accuracy mapping. Algorithm and code snip for BNS section identification. First, keyword based approach. Second, text similarity algorithm.
Third, rule-based system. Fourth, machine learning model. First, identifying keyword from the complaint. कीवर्ड में से अपन आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड को एंड मैचिंग दे विद द कीवर्ड इन द बीएनएस और फिर उनको मैच करेंगे बीएनएस सेक्शन में कि कौन सा सेक्शन उस पर अप्लाई होगा. टेक्स्ट सिमिलरिटी एल्गोरिथम यूजिंग कंसिस्ट सिमिलरिटी और अदर टेक्स्ट सिमिलर मैट्रिक्स टू आइडेंटिफाई बीएनएस सेक्शन विद सिमिलर कंटेंट टू द कंप्लेंट. Third, rule-based system. Developing a set of rule based on legal expertise. डेवलप करेंगे एक रूल बेस्ड को जो लीगल एक्सपर्टीज में होगा टू आइडेंटिफाई एप्लीकेबल बीएनए जो एप्लीकेबल होगा बीएनए सेक्शन को अप्लाई करने के लिए. मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन अ डाटाबेस ऑफ कंसिस्टेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रिडिक्ट रिलेवेंट. Question number 2. In this question, we are explaining decision trees and its various approach. Decision tree. Decision trees is a visual mode. Decision tree एक visual mode होता है. Decision tree एक flow chart की तरह होता है जो represent करता है series of choice और a decision tree leading to a final outcome. Classification tool. Classification tool classify करता है डाटा को in distinct categories में based on specific characteristics और features और उनकी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के हिसाब से. की कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट, रूट नोड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्री रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डाटा सेट. जो रूट नोड होता है वो डिसीजन ट्रीज का पेरेंट नोड होता है जो सबसे ऊपर होता है उसमें. इंटरनल नोड डिसीजन पॉइंट वेयर द ट्री ब्रांच बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फीचर. जो इंटरनल नोड होता है वो रूट नोड के अंदर होता है और इसमें उसके फीचर होते हैं अलग अलग नोड के. लीफ नोड. लीफ नोड इज लास्ट नोड होता है. ये नोड इंटरनल नोड के अंदर होता है जो क्लासिफाइंग करता है उनकी फीचर्स को. स्टेप इन डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट, डाटा प्रिपेयर. डाटा को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है. कंप्लेंट को पहले क्लीन करना पड़ता है, फिर प्री प्रोसेस करना पड़ता है एंड फिर प्रिपेयर करना पड़ता है उसको समझने के लिए. फीचर सिलेक्शन. फीचर सिलेक्शन एक रिलेवेंट फीचर है जो कंट्रीब्यूट करता है कंप्लेंट को क्लासिफाइंग करने के लिए. ट्री बिल्डिंग. Construct the trees by iteratively splitting the data based on the selected features. Algorithm for decision building trees. Decision build करने के लिए कौन कौन सी एल्गोरिदम को यूज करते हैं. ID3 iterative measure 3 C4.5 CART classification and regression trees. A popular algorithm that uses information gain. ये information gain के काम आती है. उसका बेस्ट फीचर है splitting. C4 ये ID3 से थोड़ी इंप्रूव होती है. इसमें हाई हैंडलिंग करता है ये कंटिन्यूअस फीचर को और डीलिंग करता है मिसिंग वैल्यूज के साथ. कार्ट एल्गोरिथम एक वर्सेटाइल एल्गोरिथम जो हैंडल करता है क्लासिफिकेशन को और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को. अप्लाइंग डिसीजन ट्रीज फॉर कंप्लेंट क्लासिफिकेशन. अब कौन कौन सी कंप्लेंट अप्लाई हो रही है डिसीजन ट्रीज पे. पहला, कंप्लेंट एनालिसिस. सबसे पहले कंप्लेंट को समझना, उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना. फीचर मैपिंग. फिर फीचर को मैप करना. मैप द फीचर टू डिसीजन ट्री नोड एंड ब्रांच. मैप करना फीचर को डिसीजन ट्री के नोड और ब्रांचेस में. सिलेक्शन सेक्शन क्लासिफिकेशन. द ट्री क्लासिफाई द कंप्लेंट इनटू मोस्ट रिलेवेंट सेक्शन. और ट्री को क्लासिफाई करना रिलेवेंट सेक्शन में अलग अलग. एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्रीज अप्रोच. फर्स्ट, इजी इंटरप्रिटेशन. डिसीजन ट्री समझने के लिए इजी रहता है नॉन टेक्निकल ऑडियंस में भी. डाटा एक्सप्लोरेशन. दे कैन अनकवर द हिडन पैटर्न. ये अनकवर करता है हिडन पैटर्न्स को और इनसाइड कंप्लेंट्स के अंदर भी. हाई एक्यूरेसी. डिसीजन ट्रीज कैन अचीव हाई एक्यूरेसी इन क्लासिफाइंग कंप्लेंट इफेक्टिवली. क्लासिफाइंग कंप्लेंट में डिसीजन ट्रीज का हाई एक्यूरेसी अचीव करता है वो. Question number 3. What are the appropriate for accessing the performance of algorithm used in text mining? Text mining, evaluating algorithm and matrices. Text mining have involved a critical tool for extracting insight the pattern from large volume of unstructured text data.
टेक्स्ट माइनिंग एक क्रिटिकल टूल होता है जो एडजेक्ट करता है पैटर्न्स को लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से। इट्स एप्लीकेशन स्पैन अ वाइड रेंज ऑफ डोमेन, और इसकी जो एप्लीकेशन होता है वो वाइड रेंज ऑफ डोमेन में होता है, फ्रॉम सोशल मीडिया एनालिसिस, सोशल मीडिया को एनालाइज करने, एंड कस्टमर सेंटिमेंट टू एंड कस्टमर सेंटिमेंट में, टू साइंटिफिक रिसर्च एंड मेडिकल डायग्नोसिस, और साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल डायग्नोसिस में भी। टू इफेक्टिवली leverage the process of text mining, it is crucial to understand and apply appropriate metrics. जो ये टेक्स्ट माइनिंग रहता है वो क्रूशियल रहता है अंडरस्टैंड समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स में। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट माइनिंग। फर्स्ट, व्हाट इज टेक्स्ट माइनिंग? टेक्स्ट माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडजेक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न फॉर अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट माइनिंग एक प्रोसेस होता है एडजेक्ट करने के लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अपन समझ पा रहे हैं उसको बाहर निकालता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में से। इट इन्वॉल्व टेक्निक लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये टेक्निक इन्वॉल्व करता है ये तीनों, एनएलपी, एमएल और स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग हैज एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग सेंटिमेंट एनालिसिस। टेक्स्ट माइनिंग की एप्लीकेशन हर फील्ड में है, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस, टॉपिक मॉडलिंग, मॉडल समराइजेशन, नॉलेज डिस्कवरी। Important of appropriate matrices. First, evaluate algorithm performance. Second, choosing the right algorithm. Third, improving algorithm accuracy. First, evaluating algorithm performance. Matrices allow us to objective access and effectiveness and accuracy of the text mining algorithm. मैट्रिक्स अलो करता है इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी को। टेक्स्ट माइनिंग में एक्सेस रहता है इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी का। चूजिंग द राइट एल्गोरिथम। मैट्रिसेस हेल्प सिलेक्ट करता है एल्गो मतलब सही एल्गोरिथम को चूज करने के लिए अलग अलग टास्क के हिसाब से, फॉर अ टास्क और डाटा सेट। थर्ड, improving algorithm accuracy. Matrices provide insight into area where algorithm can optimize. Accuracy matrices. Accuracy, precision, recall, F1 score. Accuracy में क्या होता है? करेक्ट परसेंट रहता है। मेजर द ओवरऑल करेक्टनेस, मेजर करता है ओवरऑल करेक्टनेस को टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम में। रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस, और रिप्रेजेंट करता है करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस को। प्रिसीजन, इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव इंस्टेंस। प्रिसीजन पॉजिटिव इंस्टेंस को आइडेंटिफाइड करता है अमंग ऑल और सब प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन में से। रिकॉल, measure the ability of an algorithm to identify all relevant positive instance. रिकॉल होता है वो मेजर करता है एबिलिटी एल्गोरिथम में से और आइडेंटिफाई करता है रिलेवेंट पॉजिटिव इंस्टेंस। F1 स्कोर, F1 स्कोर में एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल का मिक्स रहता है। A harmonic means of precision and recall, providing a balanced measure of an algorithm performance. Precision. Precision is a crucial matrices when it is important to minimize false position. Precious होता है वो crucial matrices होता है, important होता है minimize false positives के लिए। For instance के लिए in span detection scenario, span detection scenario के लिए, high precision के लिए, and misclassifying legitimate emails as spam के लिए। Recall. Recall is a key matrice when it is essential to capture all positive instance in medical diagnosis. Recall होता है वो एक की मैट्रिक्स होता है जो कैप्चर करता है रिलेवेंट पॉजिटिव इंस्टेंस को, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस। हाई रिकॉल इंस्टेंस आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स में स्पेसिफिक डिसीजेस एंड मिनिमाइजिंग मिस्ड डायग्नोसिस। F1 स्कोर, F1 स्कोर प्रोवाइड करता है बैलेंस मेजर को फॉर बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल में और सुटेबल मैट्रिसेस को, और बनाता है सुटेबल मैट्रिस when both aspects are equally instant, offer a comprehensive evaluation of an algorithm performance considering both its ability to correct
identifying positive instance, ability to capture all instance. Efficiency matters है, processing time, computational capability, complexity. First, processing time. Measure the time required for an algorithm to process a given data set. देखता है टाइम की कितना लग रहा है एल्गोरिदम को प्रोसेस होने के लिए गिवन डाटा में. इट इज क्रूशियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन एंड लार्ज डाटा सेट. ये क्रूशियल होता है रियल टाइम एप्लीकेशंस में और बड़े डाटाबेस में. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करता है कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम में, such as a memory and processing power. It is a critical for resource constraint. ये critical होता है resource constraint environment में. Processing time. Processing time is a critical feature for real time application. Processing time एक critical feature होता है real time investigation में, in scenario where speed is essential. जिसमें speed जरूरी होती है, such as social media. Social media में sentiment analysis करने के लिए इस टाइप के, और फाइनेंशियल मार्केट में मॉनिटराइजिंग करने के लिए इस टाइप के ग्राफ होते हैं सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस में, और मार्केट मॉनिटराइजिंग जैसे कि शेयर मार्केट एंड सो ऑन. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट होता है हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट के लिए. एल्गोरिदम विथ लोअर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो होता है ये रिक्वायर करता है लेस मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को, मेकिंग देम मोर सुटेबल फॉर रिसोर्स कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट. जो सुटेबल करे रिसोर्स कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट और लार्ज स्केल टेक्स्ट माइनिंग टास्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.